Yes. See, what is MS Excel? This is something different from MS Word. This is the package of Microsoft. ये एप्लीकेशन ऑफिस पर्पस के लिए है प्योरली, और इसको हम डॉक्यूमेंट्स ना बोल के स्प्रेडशीट बोलते हैं, राइट? वी कॉल इट स्प्रेडशीट. So MS Excel is a commonly used Microsoft Office application. It is a spreadsheet program which is used to save and analyze numerical data. यानी कि spreadsheet का मतलब यहाँ पर होता है we are handling numerical data. This sheet is consist of rows and columns. और rows और columns कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर basically हम numerical data पे काम करते हैं. So we will bring you to the important features of MS Excel along with overview how to use the program, right, and how it is be benefited. Few samples have also been given here. See what is MS Excel. MS Excel is a spreadsheet program where one can record data in the form of tables. It is easy to analyze data in an Excel spreadsheet. The image, see here, image is given. If it is not visible properly, so I'll explain you. This is the combination of rows and columns, right? यहाँ पे आप documents की तरह नहीं लिख सकते, plain page नहीं मिलेगा आपको. You will see only rows and columns. ठीक है? Row and column. तो row and column वहाँ पे होता है जब हम कोई numerical data पे काम कर रहे हो. आप अपनी क्लास का suppose I'm a teacher, I want to create a result of my students. तो एक कॉलम पे मैंने नेम्स लिख दिए, एक कॉलम्स में मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिख दिए, 4-5 सब्जेक्ट्स, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज. मुझे इस पे कुछ काम परसेंटेज निकालना है, ग्रेड निकालना है, ठीक है? तो आई विल यूज द एमएस एक्सेल हियर, राइट? तो कैसे एमएस एक्सेल आपको कहाँ पे मिलेगा? टू ओपन एमएस एक्सेल ऑन योर कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप्स, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, click on MS Office, and then finally choose MS Excel, right? Now, what is cell here? Spreadsheet is a form of table comprising of rows and columns. The rectangular box at the intersection point between rows and columns forms a cell, right? किसे बोलते हैं cell? जब आप इस तरीके से rows and columns का जो combination होता है, इसे cell बोला जाता है. एक डेटा जहां पर आप इंसर्ट कर रहे हो एक बॉक्स पे, उस बॉक्स को सेल बोलते हैं, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द सेल. और उस सेल का एक एड्रेस होता है. द सेल एड्रेस इज द नेम बाय व्हिच इस सेल कैन बी एड्रेस्ड. फॉर एग्जांपल, आपका जो वो बॉक्स है सपोज 7th रो में है, राइट? रो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 और कॉलम्स ABCD से शुरू होते हैं. यहाँ पे 7th रो के G कॉलम पे है, तो उस सेल का एड्रेस बनता है G7, राइट? G7 कॉलम पहले लिखते हैं, रो बाद में. 7G नहीं होगा, G7 होगा. तो G7 का मतलब उस पर्टिकुलर बॉक्स का एड्रेस. तो G7 में 7th रो है और G उसका कॉलम है. सपोज पहली रो का पहला कॉलम, पहला कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको बोलोगे A1, राइट? वो उसका एड्रेस होगा A1. इन दिस वे यू कैन गिव द सेल एड्रेस. What are the features of MS Excel? Just like MS Word, we have also the different editing features of MS Excel here. Various editing and formatting can be done in MS Excel spreadsheets. What are these features? See, firstly, home features. Home comprises options like font size, font style, font color, background color, alignment, formatting options, insertion, deletion, editing. ये सारा आपको home पे मिल जाएगा, ठीक है? Insert सेम उसी तरीके से है. Comprises options like table, format, style, inserting images, figures, adding graphs, charts, sparklings, header, footer. ये सब जो भी आप insert करना चाहते हो, you just go to the insert option and you will insert all the things. If you want to see the page layout, themes, orientations, page setups, it will also be available on page layout. Very important features in MS Excel is formulas. It is very important. I explain you, just suppose I want to find out the percentage of all the students, whatever they scored the marks. So percentage, I can write a formula. And this formula will be applicable in whole Excel sheets. Right? मैं यहाँ पर एक formula लिखूंगी और वो formula मैं एक सेल के लिए लिखूंगी और वही formula पूरी Excel sheet में follow होने लगेगा. So it is very useful, very beneficial point. और यहाँ पे MS Excel पे कुछ
बिल्ट इन फॉर्मूलाज फंक्शंस भी होते हैं एक्सेल के, कुछ बने बनाए फॉर्मूलाज और फंक्शंस भी हैं जो अपने काम करते हैं। इससे क्या हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है, जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये एक्सेल का जो ऑफिस सूट में जहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल डेटा को पे सॉल्यूशन का काम होता है, जैसे सैलरी पेरोल पे काम करना है, बच्चों के अटेंडेंस का डेटा इकट्ठा करना है, रिजल्ट्स क्रिएट करना है, ऑफिसेस के काम करने, बैंकिंग के भी बहुत सारे काम इस पे हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये एमएस एक्सेल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमएस ऑफिस का एक फीचर। डेटा यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा भी ऐड कर सकते हैं हम, फिल्टरिंग का ऑप्शन भी होता है। डेटा यहाँ पर एक टूल होता है जिससे हम एक्सटर्नल डेटा, सपोज आप वेब से कोई डेटा ऐड करना चाहते हो अपने एक्सेल शीट पे या अपनी शीट पे कोई दूसरी शीट को ऐड करना चाहते हो, उस शीट से डेटा लेकर आना है आपको। आपने 2 शीट्स बनाई है, पहली शीट में डेटा दूसरी शीट से लेकर आना है, तो डेटा यहाँ पर क्या करेगा, आपके एक्सटर्नल डेटा को भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा देगा। रिव्यू ऑप्शंस भी सेम, रिव्यू और व्यू आपका उसी तरीके से जैसा वर्ड में था। रिव्यू मींस प्रूफ रीडिंग कैन बी डन फॉर एन एक्सेल शीट्स, स्पेलिंग चेकिंग यहाँ पर भी होगा। रिव्यू कैटेगरी, रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स इन दिस पार्ट। व्यू मींस डिफरेंट व्यूज इन विच वी वांट टू स्प्रेडशीट डिस्प्लेड, आप कैसे व्यूज वहाँ पे, जूम ऑप्शन है, अरेंजमेंट है, पेन्स है, कैसे बनाना है आपको, तो वो व्यू ऑप्शंस में कैसा दिखाई दे रहा है आपका एक्सेल का शीट्स। तो एक्सेल इज वेरी बेनिफिशियल। MS Excel is widely used for various purposes because the data is easy to save and information can be added and removed without any discomfort and less hard work. तो MS Excel का बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑफिस पे, छोटे छोटे कामों पे भी, अगर हम लोग अपने पर्सनल कामों पे भी डेटा इकट्ठा करके कैलकुलेट करके रखें तो वहाँ पे भी MS Excel का बहुत ज़्यादा यूज है। तो बेनिफिट्स इसकी यही है कि easy to store data, since there is no limit to the amount of information that can be saved in the spreadsheet. Spreadsheet में बहुत बड़े अमाउंट की इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है। MS Excel is widely used to save data or to analyze data. Filtering information in Excel is easy and convenient. इसमें फिल्टर करना इंफॉर्मेशन को बहुत इजी होता है। बिल्ट इन फंक्शंस होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। इजी टू रिकवर डेटा, सपोज आपने फाइंड एंड सर्च, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आपको सर्च करना है, किसी का नेम सर्च करना है या रोल नंबर से डेटा सर्च करना है, तो फाइंड एंड सर्च आता है यहाँ पे, आप उसको करोगे और डायरेक्ट उस शीट पे पहुंचोगे। सपोज आपके पास 1000 डेटा की कोई शीट है और यू वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर रो में सपोज एक रोल नंबर पे आपको जाना है, तो आप वहां पे उस डेटा को रिकवर कर सकते हो फाइंड और सर्च पे कि यहाँ पे इस रोल नंबर का डेटा मुझे सर्च करना है, तो यू विल डायरेक्टली गो टू दैट रो or that cell or can say. So this is called the easy to recover feature here. If the information is written in on a piece of paper, find it many take longer. ये यहाँ पे बोल रहे कि अगर हम पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन लेके और उसे ढूंढे तो वो बहुत मुश्किल से मिलती है, बट स्प्रेडशीट में जो रिकवरिंग फंक्शन है फाइंड एंड रिकवर वाला, उससे आप कितनी भी बड़ी स्प्रेडशीट बनी हो, you will go direct to that point. If the information written on a एप्लीकेशंस क्या है, फॉर्मूलाज, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे ऐड के लिए, सम के लिए फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सारे डेटा में से मिनिमम डेटा कौन सा है उसे निकालने के लिए बने ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसके अलावा खुद की फॉर्मूला भी आप इसमें सेट कर सकते हो, बट बिल्ट इन फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपके ऑटोमेटिक काम करते हैं। ऑटो सम आपने ये देखा होगा कि आप पूरा सम करके दिखा देगा जितनी भी आपकी रोज में आपने ऑटो सम किया, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। इजियर है, लेस टाइम टेकिंग है, फॉर्मूला ऑप्शंस जो इसको लेस टाइम टेकिंग बनाता है। मोर सिक्योर, दीज स्प्रेडशीट्स कैन बी पासवर्ड सिक्योर। आपको पता होगा ये जितनी भी स्प्रेडशीट आप बनाते हो, सपोज इम्पोर्टेंट डेटा यू डोंट वांट टू शो एनीवन, तो ये स्प्रेडशीट भी पासवर्ड सिक्योर होती है। अगर आप अपनी स्प्रेडशीट में पासवर्ड लगा दोगे तो कोई भी अगर आपके सिस्टम पे बैठ के काम कर भी रहा है तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट स्प्रेडशीट। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होती है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग देम इज अ वे लेसर इन कंपैरिजन टू डेटा रिटन इन रजिस्टर और पीस ऑफ पेपर। तो इस तरीके से सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर हम पेपर पे देखें तो वो सिक्योरिटी नहीं है, पर यहाँ पर ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डेटा एट वन प्लेस, डेटा आपको एक ही प्लेस पे सारा मिल जाता है। एक ही MS एक्सेल शीट पर कई स्प्रेडशीट्स बना सकते हो।
1 2 3 4 5, तो एक ही जगह पे आपकी सारी स्प्रेडशीट इकट्ठा हो जाती है. So earlier data was to be kept in different files and registers where the paperwork was done. Now this has become convenient as more than one worksheets can be added in a single MS Excel file. So what are the points to remember here? If we go to remember the points, right? So there are certain things. See, an MS Excel file is saved with an extension of .xls. I explained you. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर एक फाइल को एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है. इससे ये पता लगता है कि ये फाइल इस वाले फाइल्स की है, मतलब ये फाइल किस पावर पॉइंट की है, एक्सेल की है, वर्ड की है, किस टर्म किस एक्सटेंशन की है. तो अगर आपने एक्सेल पे फाइल बनाई है तो ये सेव होगी .xls से, राइट. इट विल बी सेव्ड विद .xls. Companies with larger staff and workers use MS Excel, saving employee information become easier. आपने देखा होगा कंपनीज में, ऑफिसेज में MS Excel का बहुत ज्यादा यूज होता है. Excel spreadsheets are also used in hospitals where the information of patients can be saved more easily and can be removed conveniently once their medical history is cleared. Excel sheet अपने आप में एक बहुत बड़ी शीट होती है. इस तरीके से ऐसा नहीं है कि वर्ड में जिस तरीके से आपका अपना पर्सनल यूज के लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, बट एक्सेल शीट पे क्या है, ये आपको फॉर्मूला भी प्रोवाइड करा, मतलब एक तरीके का जो कंप्यूटर का कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे इजीली हो जाता है और हम इजीली इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड से, और रीयूज फॉर्मूले का बार बार हम इसमें कर सकते हैं. और अनलिमिटेड डेटा इसमें स्टोर होता है कि स्प्रेडशीट बहुत बड़ी होती है जिसमें आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो. The sheet on which you work is called the worksheet. अब जिस शीट पे आप काम करते हो उस शीट को बोलते हैं वर्कशीट. जैसे पूरे एक्सेल को तो बोला जाता है स्प्रेडशीट, राइट. पूरे एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट, बट जिस आप शीट पे काम कर रहे हो वो आपकी वर्कशीट है. जब आप इसको सेव करोगे तो वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 इस तरीके से सेव होती है. तो मल्टीपल वर्कशीट कैन बी एडेड इन अ सिंगल स्प्रेडशीट और सिंगल एक्सेल फाइल. एक ही एक्सेल फाइल पर आप बहुत सारी मल्टीपल वर्कशीट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो. तो दिस इज अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. इसे डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं हम लोग, राइट. ये डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी है जहाँ पे आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो. डेटा इज प्रोसेस्ड हियर. तो MS एक्सेल को अगर देखा जाए तो एक तरीके का ऑफिस, प्योरली ऑफिस पर्पस के लिए काम होता है, जहां पर आप कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हो. अगर हम ये देखें कि जहाँ पे हम वर्ड में प्रोसेसिंग करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपका वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड होगा. और अगर आपको स्प्रेडशीट पे काम करना है, यू वांट टू वर्क ऑन न्यूमेरिकल डेटा, देन यू गो फॉर द MS एक्सेल शीट, राइट. तो MS एक्सेल शीट पे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे. इसके कुछ और यहाँ पे फीचर्स होते हैं, कुछ जिस तरीके के इसमें फंक्शंस हैं, कुछ और फंक्शंस हैं. जैसे कि एक फंक्शन इसमें होता है एवरेज, AVG एवरेज या सम. इस तरीके का यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको. जैसे कि सेल है, सपोज आपका सेल है, जस्ट सी यहाँ पे, जैसे ये सेल है आपकी, आपने एक रो पे जितनी भी सेल्स हैं सबका सम करना है, ठीक है. तो आपके पास सम ऑप्शंस, ऑटो सम तो होता है, पर सपोज आपको 4 ही सेल का सम करना है, तो आप क्या करते हो, एक सम लिख के सेल्स का एड्रेस लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है. जैसे मैंने लिख लिया कि मुझे यहाँ से B1 से लेके H1 तक सम करना है जितने भी सेल्स पे, तो मैं एड्रेस लिख दूंगी सम B1:H1, मतलब B1 से लेके H1 तक का सम करके दो हमें. तो इस तरीके से आपको जैसी भी जरूरत होती है उस तरीके का आपका डेटा यहाँ पे सम अप हो जाता है. तो इस तरीके से आप खुद से फॉर्मूला भी क्रिएट करते हो. सपोज यू वांट टू राइट अ फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालना है. ये फॉर्मूला बिल्ट इन नहीं हो सकता क्योंकि परसेंटेज इज बेस्ड ऑन योर ओन फॉर्मूला. सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है तो आप परसेंटेज अपॉन 500 से निकाल रही हो. तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खुद से फॉर्मूला लिख सकते हो. आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे,
तो ऊपर एक फॉर्मूला बार आता है, तो उस फॉर्मूला बार पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, तो उस सेल पे वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। आपने लिख दिया कि भाई जो भी इनका सम आएगा, दैट सम डिवाइडेड बाय 500 into 100, जो भी फॉर्मूला आपने पुट किया, क्लिक मारा तो यू विल गेट द आंसर। एंड इफ यू ड्रैग दैट फॉर्मूला टू होल शीट, तो वो फॉर्मूला उस पूरी शीट के लिए लगेगा। नाउ इफ यू एंटर ओनली मार्क्स, इट विल गिव यू द परसेंटेज ऑटोमेटिकली, राइट? ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज प्रोवाइड कर देगा। तो एक बार हमको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ता है एमएस एक्सेल की शीट पे, एंड इट विल गिव्स यू द वर्क, और आप जितना भी इसमें डेटा एंटर करते रहेंगे, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स और सेम ऑप्शंस whenever you use it। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी हेल्प होती है कि आपको कोई ज्यादा इसमें वर्क करना नहीं पड़ा और आपका काम इसमें होता जाता है। तो इसलिए एमएस एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है एमएस ऑफिस का। जैसे वर्ड एक पावरफुल टूल है, इसी तरीके से एमएस एक्सेल भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। और माइक्रोसॉफ्ट में ये ऑफिस सूट इतना इम्पोर्टेंट बनाया, और ये आज भी सब लोग बहुत प्रॉपरली यूज करते हैं। इसमें नए नए फीचर्स अपडेट होके आते रहते हैं, कुछ नया फीचर्स, जैसे कि इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं जो हम कल स्टडी करेंगे, कल की क्लास में हम उसको स्टडी कर लेंगे, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, और कुछ फीचर्स अगर इसमें होते हैं तो। अदरवाइज एक्सेल पे मैं आप एक बार खोलेंगे एक्सेल को, जब इससे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो इट विल बी वेरी मीन्स दैट इंटरेक्शन जब आपका एक्सेल से होगा प्रैक्टिकल के टाइम पर, प्रैक्टिकली इफ यू डू दैट वर्क, तो इट then you will understand what are these options and how it works, right? So this is the features